This call is now being recorded. Yeah. So we already discussed about the alternating current, the mean value, and that is average value of the AC and the RMS value of AC. Now we will see how that AC is connected to any circuit containing the resistor, a normal resistance, which we have studied in Ohm's law circuit in class 10th. If only that resistor circuit is uh, applied, how that AC behaves. AC behaves means how that there will be relation between the voltage and current of that AC. That we are going to see first for resistor circuit. So are you able to see this PPT now? Yes, sir. Yes, Okay. sir. This is actually made by our Honorable Mani sir, which he is now retired as a DC from Chennai region. So wonderful it is made. So with the help of this, I will be showing you. So now see, this is AC circuit. You can write the heading AC circuit with the pure resistor. So only resistor is applied. And as I told you that we generally show it with the AC, we show with the this type of wave, sine wave की तरह से हम दिखाते हैं. So E is equal to E naught sin omega t हम लोग दिखा रहे हैं इसको, है ना. E कभी कभी इस तरह का चिन्ह भी दिखाया जाता है एप्सिलॉन का. V भी दिखाते हैं वोल्टेज के लिए, बट जनरली अगर इधर E लिया है तो we will also go with this. So E is equal to E naught sin omega t, and this E naught is definitely the maximum value, and this E is the instantaneous value of this alternating AC voltage. Okay, so this way चलिए ये लगा रखा है हमने, और ये एक रजिस्टर सर्किट अपना लगा हुआ है. तो डेफिनेटली पहली इक्वेशन हमारी जो बन जाती है वो ये बनती है, E is equal to E naught sin omega t. Then as we know by our Ohm's law that I is equal to E upon R होता है. तो हम इस तरह से अगर इसको लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, if you take this as equation 2 and substitute the value of E from this equation 2 in this from this equation 1 in this equation 2, we can write this way. So E naught upon R which है ही, और E naught sin omega t हो गया. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. एंड इफ वी कंपेयर, दिस इज अगेन I हो गया, तो E naught upon R, अगर यहाँ पर I है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय आवर डायमेंशनल एनालिसिस ऑल्सो यहाँ पर भी डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, I की होनी चाहिए. तो ये I कौन सा होगा, डेफिनेटली जब E naught upon R है तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम I naught, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी. So that we can denote with like this. So this is your equation 3. Okay, so now if you compare this equation 1 and equation 3, what is the nature you can see? E is equal to E naught sin omega t आ रहा है, यहाँ पर भी I equal to I naught sin omega t आ रहा है. तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक तरह से बिहेव कर रही है, मतलब जैसे साइन वेव ही आ रही है, दैट मीन जैसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वैसे ही वोल्टेज की भी आएगी, या जैसे वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू आएगी वैसे ही इसकी भी मिनिमम वैल्यू आएगी. एग्जैक्टली सेम साइन का रिलेशन यहाँ बना है तो वैसे ही यहाँ पर बन गया है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट EMF एंड करंट आर इन द सेम फेज, है ना. ये दोनों सेम फेज में है, मतलब एक साथ बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल. तो जब अगर ये सेम फेज में है तो अब हम इसको वेव की सहायता से भी दिखाएंगे. वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ दिस वेव डायग्राम. साइन वेव और कोसाइन वेव दोनों से दिखा सकते हैं, बट इफ वी आर स्टार्टेड विद द साइन, वी विल गो विद साइन ओनली. अगर मैं यहाँ पे cos से स्टार्ट करता, आई कैन गो विद cos. आई विल कंपेयर आल्सो विद cos ओनली. ओके, सो नाउ यू कैन सी if I have shown here in terms of angle theta, or I can show it with the help of the time period t by 4, t by 2, t by, and this is t. Okay, so this way also I can show, and on y-axis I have shown this E and I, where E and I are the instantaneous values. So I will just make this first of all, this blue one is the, see how nicely Mani sir has shown differently with the different colors. So you can see this the EMF is shown with this blue color. Wave is also made blue color, and here this is I. This I is also made
रेड कलर, तो यहाँ पर भी वेव भी रेड कलर की बना दी है. सो beautifully it is shown, and you can see the peak value of I, that is I naught, is definitely smaller than the peak value of E, instantaneous current, है ना. आप देख सकते हैं, because here the relation we have got is I naught is equal to E naught upon R. So in this case, the maximum peak value of I is less than that peak value of the voltage or EMF, है ना. By what factor? R factor, है ना. ये हो गया because resistance is there in that circuit. तो ये इस तरह से अब आप इसमें देख सकते हैं, both are at 0 here, both are coming at peak, means at same time at t by 4 time, right. Both came at 0 again, है ना, at t by 2, and both alternate हो गया अभी, है ना. Change हो गया, direction change हो गया, so that, and at this 2 pi or t, they are again at 0. Now they are going to repeat this cycle again, and that's why this they have completed one cycle. So this is one time period, this much is the one time period, आप देख सकते हैं. और 2 pi रेडियन हो गया, 2 pi, अगर इस तरह से जाते हैं तो 2 pi हो गया ये. तो एंगल के सहायता से देखें तो 2 pi, और यहाँ पर देखें तो t. So I hope it is clear. EMF and current are in same phase. तो यहाँ पर देखिए I naught और E naught और I naught दिखा दिया यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसकी वेव दिखा दिया. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. Now, as EMF and current are in same phase, so the same thing we can show it with some other diagram with the help of this, as I told you, angle की सहायता से हम लोग इसको दिखा सकते हैं. तो वो कैसे दिखाएंगे? दैट डायग्राम, वो डायग्राम जो होता है उसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम. और उस फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एज वी नो दैट देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने पढ़ा होगा, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4, यू गो एंटी क्लॉकवाइज, राइट. दैट the first quadrant, then second, third, and fourth, anti-clockwise, and you divide that whole into 4 parts, 4 equal parts, right. तो उसमें हम लोग उसकी सहायता से इसको दिखाएंगे सेम फेज में कैसे हैं EMF और करंट. तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ रही है. हम यहाँ पर इनिशियल फेज, मान लीजिए E नॉट है, इसका इनिशियल फेज हम ले रहे हैं ओमेगा टी. ये ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है हमारा. तो दिस ओमेगा टी वी हैव टेकन, और हमने क्लॉक ले लिया. क्लॉक ऐसे जा रहा है, क्लॉक जा रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. हमने ओमेगा टी ऐसे लिया, राइट, क्योंकि एंगल भी ऐसा ही लेते हैं हम लोग जनरली, राइट. सो दिस वे वी हैव टेकन. सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मान लीजिए किसका था, एक पर्टिकुलर फेज जो है ओमेगा टी है, ये ई नॉट हो गया. इसको हमने एरो दिखाया, एंड दिस एरो इज समवॉट, लेंथ ऑफ दिस एरो इज मोर बिकॉज ई नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज मोर. सो हमने ये ई नॉट का जो एरो है वो ज्यादा बड़ा लंबा दिखाया है ब्लू कलर का. एंड एज वी कैन सी हियर, वी कैन कंपेयर दिस, ओमेगा टी हो रहा है, यहाँ पर भी ओमेगा टी आ रहा है. दैट मीन्स दोनों ही सेम फेज में है, तो वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, दे विल ओवरलैप, बोथ दिस एरोज विल ओवरलैप. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ई नॉट, ई पीछे की तरफ है, आई आगे की तरफ है. तो ये एरो जो आया दूसरा, वो आई नॉट आया, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया है. इट इज ओवरलैपिंग ओवर इट, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज इसकी लेंथ कम है और इसके मैग्नीट्यूड कम है. आई नॉट मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन ई नॉट, तो ये इसलिए छोटा दिख रहा है. बट दे आर इन द सेम फेज. अगर थोड़ा भी फेज से ज्यादा होता ये, तो ये यहां निकल जाता आगे आई नॉट, ये यहीं रहता. तो ये ओमेगा टी प्लस समथिंग हो जाता, प्लस 30 डिग्री, प्लस 40, वॉट एवर इट इज. But here in the pure resistor circuit, they are together. So this is this type of representation of the this E and I is called as what? Phasor diagram. Okay. So यहाँ पर अगर इसी को दिखाएंगे तो that will show you the instantaneous value of this, right? तो ये इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं. So did you understand this? Would you understand? Shall Yes, we proceed? sir. Okay, thank you. Now, next heading you can write AC circuit with a pure inductor. Pure inductor, अब हम केवल इंडक्टर लगा रहे हैं. तो जो आपने इंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है उसको जस्ट रिकलेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, बिकॉज दैट विल बी यूजिंग
to find out the current in the circuit and the phasor relation between the voltage and current that we are going to study. So let us move to this. पहले हम लोग हमेशा क्या लेंगे, अपना वोल्टेज लेंगे, EMF will take this E is equal to E naught sin omega t. तो ये तो आप बिंदास पहले ले लिया कीजिए, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, EMF हम लेके चल रहे हैं और करंट हम निकाल रहे हैं। ओके, तो हम EMF लेके चले, वही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमने एक इंडक्टर लगा दिया यहाँ पर, प्योर इंडक्टर. Now this pure inductor is there and induced EMF in the inductor is what, है ना। जब हमें पता है इंडक्टर सर्किट is that type of circuit when we have put that AC in that, as that alternating current flows to the inductor, that is back EMF is set up, back EMF setup हो जाता है। तो back EMF जो setup हुआ है, that induced EMF which is opposing this, है ना, तो ये इंड्यूस हो जाता है। और वो कितना होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो कितना होता है, इफ L is the inductance of this and rate of change of current in that circuit is di by dt, then we can say that this the back in EMF induced is equal to this. और जब एक बैलेंस सिचुएशन आती है तो नेट जो हमारा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, तो मेंटेन तो करना है फ्लो ऑफ करंट, द अप्लाइड EMF जो है, ये हमने बाहर से जो अप्लाई किया है, E is equal to E naught sin omega t, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, must be equal and opposite to the induced EMF, ये इसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाना चाहिए। तो अभी इसको आप चाहे तो 2 दे दीजिए, 2 नंबर, और इसको 1, सो दीज बोथ शुड बी इक्वल, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। सो व्हाट वी हैव गॉट, E is equal to what, L di by dt, या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया हम लोगों ने, बिकॉज इट इज इक्वल एंड अपोजिट, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो माइनस का साइन हमने यहाँ प्लस कर दिया, बिकॉज इट इज इक्वल एंड अपोजिट। कई कई किताबों में हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, E माइनस, मतलब नेट क्या होगा, नेट, बट दिस net this EMF must be 0 because there is no resistance in the circuit, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको माइनस L di by dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, या सॉरी यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इसका इक्वल टू 0 होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं लिख करके डायरेक्टली हम क्या करें, इसको माइनस L di by dt को इधर ले जाएंगे, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस वे। सो बोथ वे यू कैन राइट, so either you write E plus minus L di by dt equal to 0, or you can write it this way. Okay, so that is the way to write the things. You can give it as equation 3. So give it equation 3. Now what is our purpose? Our purpose is to find out I हमें निकालना है। I के लिए हम आगे चलते हैं, तो पहले हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, by using 1 and 3 we can write E की जगह पर E naught sin omega t रख दिया, और इसको हमने नेक्स्ट ये कर लिया। Now as we want I, so इसको जस्ट हम थोड़ा सा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, so can we derive from this we can easily get di we have kept here, dt इधर आ गया, and E naught by L हो गया। So this you can give as equation 4. Now to find out I, what you will have to do? Can any one of you tell? We are here to, what is our aim? Our aim is to find out I. So we have got di. So what we should do to find out I? What we should? Integration. Very good. So integrate it. No issue. So integrating both the sides, integrating equation 4. So just equation 4 को आप integrate कर दीजिए। Shall I remove this, because this my calculation should not interrupt this one. So मैंने इसको हटा दिया, तो चलिए इंटीग्रेशन कर लीजिए। So this integration they are doing. So if you integrate it, E naught by L sin omega t dt. So integration of sine is, as we know, cos. So sin omega t या sin theta. Theta अगर आप if you are more comfortable with theta, go with theta, no problem, है ना। So if you sin theta का integration हुआ minus cos theta,
and as we know in integration we will take this factor also. So ये हमारा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हुआ ओमेगा, जो कि नीचे आ जाता है हमारा डिवाइड में यहाँ आ जाता है, इसी को हम यहाँ लिख लिए. ओके, सो दिस वे इट इज दैट. तो ये हमारा यहीं पर आ गया. So we have got I, but see, this is was your equation 1, and now suppose this is your equation 5. But when you will be able to compare, हम E आ गया हमारे पास, I आ गया. में है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? टू ब्रिंग दिस ऑल्सो इन साइन फॉर्म. सो कैन वी कन्वर्ट एनी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमें पता है जिससे हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदल सकते हैं? सो डू वी नो एनीथिंग थ्रू व्हिच वी कैन कन्वर्ट कॉस इनटू साइन? सर हम माइनस कॉस थीटा को कॉस साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए वही करते हैं हम. पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं. वेरी गुड, बिल्कुल. आपको मैथ स्टूडेंट्स नो दिस फॉर्मूला आल्सो. नॉन मैथ्स को भी मैंने रिवीजन करा दिया था, बट अभी हम कॉस को लेते हैं, माइनस को थोड़ा सा अलग रखते हैं. एक बार यहाँ पर रख देते हैं हम, राइट. और मैं ये कॉस ओमेगा टी, आपको ये मालूम होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ऑल ऑफ यू नो sin 90 minus theta is cos theta. Yes, sir. So I can write cos theta is equal to sin 90 minus theta. So I will write here sin 90 minus theta. Okay, तो मैंने इसको काय में बदल दिया? sin 90 minus theta में बदल दिया, right? sin 90 minus theta. और sin 90 minus theta को मैं अभी ओमेगा टी लिख लेता हूँ, चाहिए तो, है ना, because it is all ओमेगा टी में चल रहा है. So I can write this way, and this I is equal to E naught upon omega L. Now again this minus sign is again troubling me, because यहाँ माइनस नहीं है, तो I want this without minus. मुझे एक कंपैरिजन हम एक ही स्तर पर कर सकते हैं, तो ये माइनस मुझे नहीं चाहिए. तो माइनस मुझे हटाना है, तो क्या करूंगा? मेरे पास एक और फार्मूला है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, पता है आपको? Do you know minus sin theta is equal to sin minus theta? तो बेटर ये दिस माइनस साइन थीटा, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं हम लोग, है ना. तो ये पूरे अगर थीटा, इसको थीटा मान ले, तो माइनस साइन, अभी मैं यहाँ पर अल्फा लिख लेता हूँ. माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस अल्फा. दिस यू फॉर्मूला यू राइट समवेयर, है ना, माइनस साइन अल्फा. तो ये माइनस का साइन मैं अंदर लेना चाह रहा हूँ. तो इस आधार पर एज वी नो दैट माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन माइनस अल्फा, बट इसका उल्टा ऐसा सही नहीं है. साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, लेकिन साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा होता है. तो इसलिए हम लोग यहाँ अल्फा मैंने ले लिया, तो ये पूरा अगर अल्फा मान ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन माइनस अल्फा. तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा बच्चों? मैं माइनस लिखूंगा यहां पर, माइनस ऑफ 90 माइनस व्हाट? ओमेगा टी, राइट? इज इट ओके? यस सर. तो दिस आई कैन नाउ राइट, अब मैं ये बड़ा ब्रैकेट हटा रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड नाउ आई कैन राइट, आई कैन मल्टीप्लाई इट विथ माइनस साइन. सो दिस इज माइनस 90 और पाई बाय 2 यू कैन से, है ना, pi by 2 minus pi by 2, and this will be omega t. So this will come as what? Omega t minus pi by 2, right? Now we are in a position to compare on same standard. See, 1 and this you can give as equation 6. तो ये हमारी वांछित इक्वेशन जो है, समीकरण, वो आ चुका है, जो कि कहता है I is equal to E naught upon omega t sin omega t minus pi by 2. So if you compare this equation 1 and see what you find. Okay, एक चीज और अभी करना बाकी है. चलिए इसको भी कर लेते हैं. यहाँ पर आपको E naught दिख रहा है, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों? इसका डायमेंशन तो कुछ नहीं है, तो ये अगर I है, तो इस पूरे का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन एनालिसिस से ये सारा क्या होना चाहिए बेटा?
what it should be? It should be current only. Current only. So this must be the maximum value of current. This should be I naught. ये क्या होना चाहिए बच्चों? I naught होना चाहिए. तो इसको हम I naught लिख देते हैं because E naught upon something. तो E naught upon something आ रहा है यहाँ. तो ये पूरा definitely क्या होना चाहिए? By dimension analysis also. यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी करंट ही होना चाहिए. यहाँ करंट है तो यहाँ भी करंट. और कौन सा करंट? अगर E naught है तो ये मैक्सिमम करंट होगा. तो जस्ट रिप्लेस दिस इक्वेशन बाय I naught नाउ. यहाँ पर I naught लगा करके रिप्लेस कर देते हैं. So shall I remove this calculation part? What I did for you? Shall I remove Yes, it? sir. Okay. So I will discard this so that I can again come on to that. Okay. So तो ये लिख दिया. देखिए यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, but I know that many of you are not comfortable with direct, so I always will try to do this way. So ये डायरेक्ट आ चुका है. So you just simply you can remember ये हमारा E है तो I हमारा ये आता है. तो अब ये I E naught upon omega L is definitely I naught, है ना. तो ये I naught है और I naught की वैल्यू क्या हो गई? E naught upon omega L. तो अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? I naught is equal to E naught upon omega L. But if you compare this with our standard Ohm's law से क्या होता है? Current is equal to voltage upon what? Current is equal to voltage upon क्या होता है? Resistance, but natural. So this must be the resistance offered by the inductive circuit. Though there is no resistor is applied, but still there is a back EMF जो apply हो रहा है. That is acting as a what? Resistance. So this is a special type of resistance. It is not due to the resistor, but due to the inductor. And that's why this resistance is given another name. And what that name is? That name is given as inductive reactance. So resistance offered by the inductor circuit is called as reactance, or the resistance offered other than the resistor circuit is called reactance. And as here it is offered by whom? The inductor. So it is called as inductive reactance. And we generally write it with XL. X के नीचे यहाँ L लिख देंगे. So XL. So XL is equal to omega L. Okay. And this XL is, so this what we have written on the basis of Ohm's law. Comparing this equation with Ohm's law, we can write XL is at the same place, this omega L at the same place where resistance exists. Resistance की place पर ये बैठा हुआ है. इसका मतलब डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है. और ये किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर सर्किट का रेजिस्टेंस है. तो XL is equal to omega L and that we will write. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. और इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो XL is equal to हमारा आ जाता है E naught upon I naught. That is the resistance offered by the inductor circuit is equal to omega L. And definitely when it is also a resistance offered, so it should also be in ohm only. तो ओम में हम चलेंगे. तो अब आप जस्ट बाकी छोड़िए. अब इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को मान लीजिए आपने 6 नंबर दिया हुआ है तो वैसे दे के रखिए. और अब जस्ट देखिए, जस्ट लुक एट दिस as a not a physics student, but look at एक आर्ट के हिसाब से देखिए, सिमेट्री के हिसाब से क्या अंतर दिख रहा है आप लोग को. What is the phase difference? Can you find any phase difference between the E and I? यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ अंतर लग रहा है. यहाँ ओमेगा टी था केवल और यहाँ पर आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. एज ए लेमैन देखिए आप, कुछ बहुत ज्यादा फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है. तो क्या आप देख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 है? ये तो दिख रहा है, राइट? राइट? Yes, sir. Can you see here minus pi by 2 is that? So कोई भी देख करके बता देगा कि इसमें करंट और ये जो आपका EMF है उसमें फेज का डिफरेंस आ रहा है. और वो कितना आ रहा है? कुछ तो भी आ रहा है ना. अब कुछ तो भी आपको पता है ये पाई है, तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है. तो कौन आगे है कौन पीछे है? चल रहे हैं, लेकिन कौन आगे कौन पीछे है? कौन पीछे चल रहा है ये भी बता सकते हैं हम लोग. कौन पीछे है? करंट पीछे है या EMF पीछे है? Who is lagging behind? ये आ गया I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. ये आ रहा है E is equal to E naught sin omega t. So who is lagging behind?
in the pure inductor circuit. Just looking at these two, just you tell me who is lagging behind. Who is lagging behind? कौन पीछे है? ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो कौन पीछे है? तो देखिए यहां पर है ना, यहां अभी मैं बता भी रहा हूं आप लोगों को, देखो ये पाई बाय 2 से पीछे है ना, माइनस आ गया ना बेटा, यहां दिख रहा है ना, मैंने इसलिए बोला आपको जस्ट लुक एट दिस, डोंट गो टू मच इनटू फिजिक्स ऑफ दिस। फिजिक्स तो हमने कर लिया, मैथमेटिक्स कर लिया, अब केवल हम देखते भी हैं यहाँ पर। ओके, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर ओमेगा टी आ रहा है फेज, और यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, तो ये पाई बाय 2 फेज से पीछे है, पाई बाय 2 रेडियन से पीछे है। हमने 11th क्लास में भी ये पढ़ा है ना, फेज डिफरेंस, तो ये पाई बाय 2 से पीछे है। अंडरस्टूड? आर यू एबल टू हियर? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सुन नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे, आई थिंक। इज इट क्लियर नाउ? करंट lags behind the EMF by pi by 2 radian. Current lags behind by EMF by pi by 2 radian. तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम इसको वेव डायग्राम से देखते हैं। पहले वेव डायग्राम हमारा जो साइन वेव कोसाइन वेव, तो साइन वेव हमारी वैसी चलेगी, बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया इसको, और साथ साथ में हम देखो जस्ट इट इज डांसिंग, सी dancing but not together, not together. See, when this was 0, this is lagging behind by pi by 2. How could you understand that this is lagging behind by pi by 2? Pi by 2 के बाद देखो, pi by 2 रेडियन के बाद या t by 4 टाइम पीरियड के बाद ये देखो 0 पे आ गया। जो यहाँ पर 0 पर था E, उस करंट को 0 उस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगा? t by 4, या अगर हम फेज में बात करें तो कितना फेज? पाई बाय 2 जब ये घुमा तब ये जाकर के यहां पहुंचा। ओके, इस तरह से आप देखिए यही सिलसिला आगे भी चल रहा है। सो इट इज कंटिन्यूअसली लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2, राइट? ये देखो पाई पर है तो ये पाई बाय 2 पर है, तो दिस माइनस दिस इफ यू डू पाई बाय 2, ये यहां पर है तब ये देखो यहां पर है पीछे 3 pi by 2 minus pi, this is again pi by 2. So it is continuously lagging behind the current which is shown with the red color, it is lagging behind by pi by 2. So pi by 2 से पीछे चल रहा है, फेज में बात करें, और इसी तरह से हम ये पीक के साथ से बात करते हैं तो ये चल रहा है। So this diagram you can make it, though you need not to make fully, यहाँ तो 2 pi तक आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आप कर देते हैं। So this is going to repeat, okay? So up to this also if you make it gives the clear picture. So you need not to make for 2 or 3 or 4 cycles, but okay, 1 तक आप बना देते हैं अच्छे से तो भी बहुत बढ़िया, आप क्या क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, ये पता चलता है। Okay, so now the same thing we will go for the phasor diagram of this phasor diagram. Okay, so ये बिल्कुल वही है, E नॉट हमारा मैक्सिमम पीक है, यहाँ पर हमारा E is equal to E naught sin omega t, this I naught is the peak of this, so again it is like this. So this way we are going, and here we will write this omega t minus pi by 2. Okay, so this is the standard way to represent, though you are not going to write the descriptive paper, but even then you should know everything, only then you will be able to do the conceptual questions or numericals based on it. Now coming to the phasor diagram of it, let us do the phasor diagram. So we will not change the place of that what arrow of the EMF, वो हम उसी जगह पर रखेंगे, because वो तो ओमेगा टी है उसका फेज, तो उसको हम ओमेगा टी पर ही रखेंगे। दिस इज एज ओमेगा टी ओनली, ये ओमेगा टी फेज ही है, बना लीजिए, मेरे साथ साथ बनाएंगे प्लीज, है ना? दिस इज ओमेगा टी ओनली, बट नाउ टेल मी वेयर आई शुड मेक दिस करंट हैंड। करंट हैंड को मुझे कहाँ बनाना चाहिए? ये ओमेगा टी आया, बताइए करंट हैंड को मैं किधर बनाऊं? पाई बाय 2 वो पीछे चल रहा है, और हमारा चलने का कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो कॉमन सेंस से बताइए कि वेयर आई शुड मेक, वेयर आई शुड ड्रॉ
द करंट हैंड, रेड करंट वाला जो हैंड है मैं कहाँ बनाऊं, किस तरफ बनाऊं? यहाँ हिंट भी मिल चुका है आप लोगों को, सर नीचे वाले क्वाड्रेंट में। नीचे वाले क्वाड्रेंट में। चलो देखो, आप लोगों ने कम से कम इससे भी आइडिया आ गया आपको, बिकॉज दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट इज दैट। तो डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। और डेफिनेटली ये ओमेगा टी है तो उससे पीछे है, ये इससे पीछे है ना, ये ओमेगा टी आगे जा चुका और ये इससे ओमेगा टी पीछे है। सो डेफिनेटली ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा। सो दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। ओमेगा टी से ये पीछे है पाई बाय 2 से है। तो यहाँ पर ये दिखा देंगे, देखा कितने सुंदर तरीके से सर ने दिखाया है। एंड जस्ट आपको ये ध्यान रखिएगा, इसका जो है लेंथ थोड़ा कम बताइएगा, आई नॉट राइट, एंड यू शो इट ओमेगा टी बाय पीछे। एंड डिफरेंट बुक्स आर शोइंग इन डिफरेंट वेज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपने ओमेगा टी यहां से शुरू किया ई नॉट, तो आपका ये आई नॉट यहां पर आएगा, ई नॉट अगर यहां है तो यहां आएगा, अगर ई नॉट इधर है तो आई नॉट इसके पीछे जाएगा। So how you show that it's up to, but always it should be like this. If E is here, E naught is here, I naught is here. अगर E ऐसा आ गया तो I naught ऐसा आ गया, अगर I naught ऐसा आ गया तो ये E naught वाला ये ऐसा आएगा। So but all the time it will go like this only. So irrespective of this, है ना, तो ये ओमेगा टी आपने यहाँ दिखाया ऐसा, तो ये I naught ऐसा आएगा। So different books are writing in different ways, so don't get confused. The main thing is E naught and I naught should have the angle, उनका जो ये है इसके बीच में फेस का एंगल जो होना चाहिए, फेस का डिफरेंस जो होना चाहिए, वो पाई बाय 2 होना चाहिए। और पाई बाय 2 कैसे होना चाहिए, I should be behind E, है ना, पीछे होना चाहिए। So I hope it is clear to all of you about this. So now let us यहाँ तक मैं आपको अभी बताना चाह रहा था, तो आई थिंक इट इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर